بتاؤ ان لوگوں نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں قدوس کے ساتھ آدھا شریک تھے، کتنے نوکری دیا بلوچوں کو، کتنے نوکری دیا پشتونوں کو؟ آج اخبار میں لگا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا بلوچ دشمن بجٹ، کسی نے لکھا تھا پشتون دشمن بجٹ، بیا بکال باجوری آور. ٹھیک ہے، بات اس طرح ہے کہ یہ بلوچ اور پشتون دشمن کون سا بجٹ ہے؟ ایک فنڈ کے لیے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ بھی قوم پرستی کا سیاست کرتا ہے، میر اسد بلوچ بھی قوم پرستی کا سیاست کرتا ہے، مگر یہ اس حد تک نہیں جاتے کہ صرف بلوچیت ہے تو فنڈ ہے، اگر فنڈ نہیں ہے تو بلوچیت نہیں. جو 2013 تک ہم نے خرچ کیا اور 2018 سے 2024 میں جو سریاب کا حشر 4 ارب روپے جو پچھلے حکومت میں ان بھائیوں نے جو بائی کاٹ کر کے چلے گئے، جو ایئرپورٹ پہ بریکز ڈالروں سے پکڑے گئے، اس کو چیک کرو اور میرا 2008 کا چیک کرو، پھر انصاف آپ کے ہاتھ میں. تجگور جاتے ہیں میر اسد کا جو پچھلے وہ ایک ایم پی اے، اس نے کتنا کام کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے اور بلوچستان میں تربت کو تو تربت بنایا نا. آپ ان بھائیوں سے پوچھیں جو بلوچی 16 ارب سریاب کے نام سے 16 ارب روپے عمران خان نے دیا، 16. ٹھیک ہے، مگر ایک پاولی اگر سریاب میں کسی نے خرچ کیا ہے میں جرمان ہے. پارلیمنٹ بنا اس دن سے لے کر آج تک بغیر بلوچ کا کوئی وزیر اعلیٰ آیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. ہم خود نہیں کرتے ہیں تو گلہ وفاق پہ، ہم خود کچھ نہیں کرتے ہیں تو گلہ کسی اور پہ. ہم بجٹ پیش کرنے پہ میں سی ایم اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپوزیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کی رسم رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے جس دن ہم نے بجٹ پیش کی، جس طرح آپ نے کے پی کے میں دیکھا، جس طرح آپ نے پنجاب اسمبلی میں دیکھا، الحمدللہ مگر ہمارے دوستوں نے بلوچستان کے رسم رواج کو مد نظر رکھتے ہوئے اس لوگوں نے اس طرح کوئی کاپیے ماپیے نہیں پاڑے. ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے دوستوں کا. اپوزیشن ہے وہ ہم پہ جہاں ہم خامی ہے وہ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکومت کا، ہمارے اتحادی حکومت کا یہ پہلا بجٹ ہے جس کو میں عوام دوست اور بلوچستان دوست بجٹ کہوں گا. سب سے بڑا کامیابی یہ ہے کہ پچھلے ہمارے بلوچستان کے لوگ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے گمبڑ جاتے تھے. پہلا یہ کریڈٹ سی ایم صاحب اور میر صادق کو جاتا ہے کہ جدوجہد کر کے نصیر آباد میں ایک گمبڑ کے مقابلے میں ایک لیور ہاسپیٹل کا بلاول بھٹو صاحب نے تجویز دیا تھا، جناب آصف علی زرداری نے، جو کہ یہ موجودہ مخلوط حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. دوسرا جناب اسپیکر، ہمارے دوست جو آج چاہے اقتدار میں ہو چاہے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھا ہو، کچھ دوست ہمارے 2008 میں ہمارے ساتھ ممبر صوبہ اسمبلی تھے جو کہ ہمارے پاس تنخواہوں کی پیسے نہیں تھے. ہم گئے جناب آصف علی زرداری کے پاس، اس نے 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے مد میں جو ہمیں اربوں روپے دیا، جو کہ آج کسی کو 80 ارب مل رہا ہے، یا اس سے پہلے 3 ارب روپے دیا جاتا تھا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ جناب آصف علی زرداری کو، جو صوبہ خود مختاری دیا. مگر دوست پریس کانفرنس کر کے آصف علی زرداری پہ تنقید کرتے ہیں. نو پرابلم. دوسرا، یہ واحد بجٹ ہے جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، ایگریکلچر، ایریگیشن اور باقی تمام محکموں کو، خصوصاً لوکل گورنمنٹ، 108% ان کے بجٹ کو بڑھایا گیا ہے. آپ ایجوکیشن کو دیکھیں، آپ ہیلتھ کو دیکھیں. اگر کوئی میرے حلقے سریاب میں کوئی ٹیچر نہیں آتا ہے، اسکول بند ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں ہوں. کیوں؟ وہاں کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے یہاں بھیج دے. اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ منسٹر ایجوکیشن نہیں ہے،
या किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं बैठता है। बेशक मिनिस्टर हेल्थ का जिम्मेदारी है, मगर इसके साथ साथ उस हल्के का एमपीए का भी जिम्मेदारी है। दूसरा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिस बजट में जब वो किधर गए रेकी साहब, जाबिद रेकी साहब ने जब खमीस नहीं निकाला, समझो कि ये आवाम दोस्त बजट है। क्यों? उसने कहा कि वफाक ने हमें नजरअंदाज किया। मैं वफाक की वकील बन के बताना चाहता हूं कि 40 अरब रुपए हमें एग्रीकल्चर के थ्रू, जो कि हम बलूचिस्तान के जमींदारों का 30,000 ट्यूबवेलों को शमसी कर रहे हैं, ये किसने दिया? हमें वफाक ने दिया। दूसरा, जनाब स्पीकर, सबसे बड़ा कामयाबी इस हुकूमत का, पिछले भी हुकूमतें आए, उनको क्यों ये बलूचिस्तान के नौजवानों का सोच नहीं आया? ये जनाब सरफराज खान बुगटी और किसका, जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को क्रेडिट जाता है कि बेनजीर स्कॉलरशिप के थ्रू हमारे बच्चे लंदन के ऑक्सफोर्ड में जाकर पढ़ेंगे। पहले किसी ने इस तरह किया है? फिर भी हम पे तनकीद। कोई वजीर आला के बच्चा रोता है तो उसको कोई दूध देता है। आप यहाँ के बैठे बोलते हमारा स्कीम में नहीं डाला गया है। भाई, आपके हाथ पांव में मेहंदी नहीं है, आप जाओ, वजीर आला सबका है, आपको दे देगा। तो बलूचिस्तान जिस तरह बाकी लोगों का है, इस तरह हमारा है। हम फेडरेशन की सियासत जरूर करते हैं, मगर ये हमारा सरजमीन है। आपने खुद देखा कि सिर्फ इस एक फंड के लिए हमारे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच भी कौम परस्ती का सियासत करता है, मीर हसन बलोच भी कौम परस्ती का सियासत करता है, मगर ये उस हद तक नहीं जाते कि सिर्फ बलूचियत है तो फंड है, अगर फंड नहीं है तो बलूचियत नहीं है। मैं समझता हूं कि दो दफा ये लोग वजीर आला बने। आप उनके हल्के को भी देखे, डॉक्टर साहब का भी देखे। हसन साहब के साथ तो मेरा हमेशा झगड़ा होता है, मगर कहीं कहीं पे मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि इसने एक पंजगूर में 7,000 मुलाजिमत दिया। आप बताओ, इन लोगों ने अपने वजारत आला के दौर में कुद्दूस के साथ आधा शरीक थे, कितने नौकरी दिया बलोचों को, कितने नौकरी दिया पश्तूनों को। आज अखबार में लगा हुआ था, किसी ने लिखा था बलोच दुश्मन बजट, किसी ने लिखा था पश्तून दुश्मन बजट, ब्याबाकाल बाजुरियावर। ठीक है, बात इस तरह है कि ये बलोच और पश्तून दुश्मन कौन सा बजट है? जो पहला दफा इस हुकूमत में जो आवाम दोस्त बजट दिया है, मुलाजिमतें दिया है। हम जब काम खुद नहीं करूंगा, मैं अपने तरफ से अपने दोस्त सफेद रीश, हमारे चीफ ऑफ ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को मैं अपने सरेआब का जितने मेरा फंड है मैं उसको सरबराह बनाता हूं। मेरा फंडों को चेक करें। 2018 का, सॉरी 8 का, जो 2013 तक हमने खर्च किया, और 2018 से 2024 में जो सरेआब का हशर 4-4 अरब रुपए जो पिछले हुकूमत में इन भाइयों ने जो बाईकाट करके चले गए, जो एयरपोर्ट पे ब्रीकेज डॉलरों से पकड़े गए, उसको चेक करो और मेरा 2008 का चेक करो, फिर इंसाफ आपके हाथ में है। हम भी चाहते हैं, असद बलोच भी चाहते हैं, डॉक्टर मालिक भी चाहता है, यहां बैठे इक्तिदार के लोग भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, वहां पे बैठे मेरे भाई जो हमें असेंबली में भेजे हैं ये भी चाहते हैं, ये हमारे अफसरान भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान से करप्शन का खात्मा हो। मगर अकेला हम नहीं कर सकते जब तक हम सब इकट्ठे न हो। हमने पहले अपने घर से शुरू करना है कि हम जब वर्क ऑर्डर देते हैं ठेकेदार को कि मैं पाकिस्तानी लुक इस्तेमाल करूंगा, मैं पाकिस्तानी सरिया इस्तेमाल करूंगा, वो हमारे बिरावी का एक मिसाइल है मिश, उसके बाद लुक ईरान का, वो भी डीजल मिला के, और सरिया ईरान का, कोई बैलेंस चेकिंग नहीं है। अच्छा, उस रोड पे अगर आप स्पीड से गाड़ी घुमाओ, रोड खत्म। इसको किसने देखना है? मेरा हल्का है, मैंने देखना है, मैंने उसको चेक करना है। आप आ जाए, मैं दावत देता हूं मौलाना साहब को, दोस्तों को, ये बलूचिस्तान आपका हमारा घर है। हम पहले चमन जाए, कैप्टन साहब का हम जो काम हो रहा है उसको चेक करें। हम पंजगुर जाते हैं, मीर असद का जो पिछले वो एक एमपीए, उसने कितना काम करके दिखाया। डॉक्टर साहब ने और बलूचिस्तान ने तुर्बत को तो तुर्बत बनाया ना। आप उन भाइयों से पूछे जो बलोच 16 अरब
सरेआब के नाम से 16 अरब रुपए इमरान खान ने दिया। 16, ठीक है, मगर एक पावली अगर सरेआम में किसी ने खर्च किया है, मैं जुर्मान है। वो कहां गए? पहाड़ों में, कोई उनका नाम निशान नहीं है। इंसान अगर किसी पे एक अंगुली उठाता है तो 4 अपने तरफ आते हैं। अभी जुम्मा हमारा 2 महीना हुआ है। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे अपोजिशन वाले भाई बैठे, ये भी मुंतखब नुमाइंदे, इनको अवाम ने यहाँ भेजा है। हम चाहते हैं कि उसका भी, उनका अवाम का भी हक है, उनको उसी तरह चलाया जाए। गवर्नमेंट के लोगों का, मैं सीएम का मतलब, हम सारे नजदीक तरीन दोस्त हैं। आप पीएसडीपी को चेक करें, अगर 80 करोड़ से एक पावली भी, वो 2 एम्बुलेंस बीवी के नाम पे मुझे दिया है, इसका मैं नहीं बोल सकता हूं। अगर हम लेते, अपने लिए लेते, हम सब मिल के, अल्लाह गवाए, हम इधर के तक आप आ जाए, सीएम साहब के साथ बैठे, ये मामा मेरा बेटा अपोजिशन लीडर, फिर लोग बोलते इसको मामू बना दिया। भाई रिश्ते में मेरा मामा है, क्या करें, ठीक है। हम आपस में बैठे, जनाब स्पीकर साहब, हम आपस में बैठे, बलूचिस्तान के मसले को हल करें, नौजवानों को रोजगार दे। जब हम नौजवानों का रोजगार 7-7 लाख में पिछले गवर्नमेंट में बिकते हैं तो नौजवान मायूस होकर गलत रास्ता पकड़ते हैं। हमने कसम उठाए इस असेंबली में कि पिछले 2008 में सारे दोस्त, अभी भी अगर मेरे मौकों में भी एक बंदा इधर खड़े होकर कहे, जब अभी तो हमने नौकरियां दिया नहीं, कि फिलहाल बंदे से किसी ने पैसा लिया, इधर ही हमें फांसी दो, हम नौकरी इंशाल्लाह नहीं बेचेंगे। और सारे दोस्त इस तरह है। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ जब नौकरी हम मेहनत कर देंगे तो हमारा बच्चा, हमारा नौजवान गलत रास्ता नहीं पकड़ता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा। हम पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए बलूचिस्तान के लोगों को एजुकेशन, जनाब स्पीकर, अभी मैं बात करूंगा तो बोलते हैं पीठ पीछे, अगर भाई जाने में बैठता मैं बात करता। आपको याद होगा 73 था जब सरदार साहब का पहला हुकूमत था, बलूचिस्तान से टीचर और प्रोफेसरों को निकाला गया। आज यहां बैठे लोग, हम पिछले 50 साल में, मैं बाकी 100 साल पीछे। कायदीन थे, उनके बारे में नहीं बोलो, जो कुछ हमें कहना है 73 को छोड़ो। 73 जब उठाओगे तो यहाँ ब्लास्ट होगा। मैं आपसे 10 बम है नहीं, ब्लास्ट नहीं, मैं तो फिर हम भी उठ जाएंगे। 73 के विक्टिम तो हम हैं। बाकी देखिए, ये हमारा कसूर है, घूमो, उधर नहीं जाओ, ये हमारा कसूर है कि आज एजुकेशन में सबसे हम पीछे हैं। बात फिर बलूचियत का, बात बलूचिस्तान का, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। स्पीकर साहब, बलूचिस्तान जब भी पार्लियामेंट बना, उस दिन से लेकर आज तक बगैर बलोच का कोई वजीर आला आया है? आप मुझे बताओ। हम खुद नहीं करते हैं तो गिला वफाक पे, हम खुद कुछ नहीं करते हैं तो गिला किसी और पे। हम अपने तरफ भी देखे, हम बलूचिस्तान के मुस्तकबिल को भी देखे। हम 80, पंजाब का 2 करोड़ रुपए फंड है, सिंध का 3 करोड़ है, हमारा 80 करोड़ है। फिर भी रोड के ऊपर रोड, नाली के ऊपर नाली वगैरह के ऊपर फिर भी नहीं बनते। तुम जावे तो जावे कहां। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और सबसे बड़ा, जमींदारों को रिलीफ देने के लिए 2000 ट्रैक्टर इस दफा इस पीएसडीपी में डाला गया है, जनाब आसिफ अली जरदारी के हुक्म पे, जो हर जमींदार को हम 50% सब्सिडी पे दे देंगे। जो भी हमारा आपका जो इत्यादि हुकूमत है, हमारा वस चलता है, हम आवाम को रिलीफ देंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा 5 साल हुकूमत इंशाअल्लाह पूरा होगा, फिर उसके बाद आप पिछला भी हिसाब करें और हमारा भी हिसाब करें कि हमने बलूचिस्तान के लिए ज्यादा काम किया है या पिछले जो 2018 से 2023 तक हुकूमत की उन लोगों ने किया है। तो आप तमाम दोस्तों का, अगर मेरा किसी दोस्त को बात हरेन लगा, माजरत। थैंक यू डॉक्टर रुबाबा साहिबा।
شکریہ جناب اسپیکر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.